Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss mechanism of enzymes. Mechanism of enzymes में बेटे, when enzyme attaches to a substrate, then enzyme substrate complex is formed. When enzyme attaches to substrate, then enzyme substrate complex is formed, and that in enzyme substrate complex, enzyme then carries out the reaction that catalyze the reaction, and ultimately the product is formed and enzyme is separated. Enzyme plus product. तो ये बेटे हमने इसका मैकेनिज्म में बता रहे हैं कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है एंड एंजाइम इज सेपरेटेड. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एमिल फिशर proposed lock and key model. Lock and key model. Lock and key model of enzyme action. This lock and key model of enzyme action was proposed by Emil Fischer. Emil Fischer in 1894. In order to understand the mechanism of enzyme action, Emil Fischer, 1894, he proposed the lock and key model. According to this model, the enzyme and substrate, they possess the specific geometric shape and they fit exactly into each other, one another, and then carries out the reaction. इसके मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट बेटे, दे हैव स्पेसिफिक शेप्स. सबस्ट्रेट, they combine together, they exactly fit into one another. ये एक दूसरे में फिट हो जाती हैं and then enzyme carries out the reaction and the substrate is then converted into product. ये enzyme substrate complex बन जाता है and after the reaction enzyme is separated and the substrate is then changed into product और ये substrate product में change हो जाते हैं ऐसे. तो इसमें बेटे बात क्या की है कि एंजाइम और substrate they have specific shapes. ये लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट दे हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड दे फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर और इसको लॉक एंड की मॉडल कहा गया. जैसे लॉक और की के अंदर इन द लॉक यू नो की दैट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द लॉक, सिमिलरली the substrates that fits exactly into the enzyme and then the reaction takes place and the substrate is then converted into the product. तो this model that determines the specificity of the enzymes. कि ये मॉडल एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी बताता है. कैसे बताता है कि ये स्पेसिफिक एंजाइम इज ओनली फॉर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. उसके बाद बेटे
डैनियल कॉशलैंड, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल लिख दिया गया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस वाज proposed by Daniel Koshland. Daniel Koshland, he was an American biologist, He gave this model in 1956, and Daniel Koshland, he suggested a modification at the lock and key model, and in this induced fit model, the enzymes, the active site of the enzyme is not a rigid structure. According to this model, इसने क्या किया डैनियल कॉशलैंड ने कि उसने तरमीम कर दी। He suggested a modification in the lock and key model. उसने लॉक और की मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन की, तरमीम की, and he said that the active site of the enzyme is not a rigid structure. कि एक्टिव साइट जो होते हैं जहाँ से एंजाइम का वो पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो कैटलाइसिस में हिस्सा लेता है, स्पीड अप करवाने में हिस्सा लेता है, वो एक्टिव साइट कहलाते हैं। एंड दैट एक्टिव साइट according to Daniel Koshland, according to the induced fit model, the active site of the enzyme is not a rigid structure. वो rigid structure नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि that active site that is molded in such a way that the substrate can fit into the enzyme. वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाती है, एक्टिव साइट थोड़ी मोल्ड होकर और सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेती है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंड दिस मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन दैट ऑफ द लॉक एंड की मॉडल। लॉक और की मॉडल की निस्बत ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ज़्यादा कबूल किया जाने वाला, साइंटिस्ट ज़्यादातर इसको बेहतर समझते हैं। दिस इज़ बेटर देन दैट ऑफ द लॉक एंड की मॉडल। तो इसमें इसके मुताबिक बेटे ये अगर एंजाइम है, इफ दिस इज द एंजाइम और ये सबस्ट्रेट है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर्ड टू द एंजाइम। ये सबस्ट्रेट है, तो अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट व्हेन कंबाइंड टुगेदर अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो ये जब आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बनाना है तो इसमें सबस्ट्रेट वाली शेप यहाँ पे पहले ये जो सबस्ट्रेट का पार्ट एंजाइम के एक्टिव साइट पर लगेगा, दिस इज द एक्टिव साइट। तो वो पार्ट आपने पहले बनाने हैं। तो पहले आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पहले बनाएंगे। तो इसमें ऐसे ये और नीचे से एंजाइम ऐसे ही बना देंगे। तो इस तरह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसमें आपने क्या देखा कि ये एंजाइम के अंदर यहाँ से ये जो आप देख रही हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर ये पार्ट था, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट, दिस इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर बट इज मोल्डेड इन सच अ वे दैट दिस सबस्ट्रेट दैट फिट्स इनटू द एंजाइम। तो ये मोल्ड कर लेती है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती है और सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेती है। तो उसके बाद ये रिएक्शन होता है एंड अल्टीमेटली this enzyme is then separated and substrate is then converted into the product।
सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, और ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं सबस्ट्रेट ऐसे, तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसमें ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या बताया गया कि डैनियल कॉशलैंड एंड अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, उसने ये मॉडल पेश किया बेटे। उसने असल में मॉडिफिकेशन की इन लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होता, बट जिसमें तो ये बताया गया था कि लॉक एंड की मॉडल में तो दे हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड दे एग्जैक्टली फिट इनटू वन देयर, इसमें तो ये बताया था। लेकिन यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर बट इज़ मोल्डेड इन सच अ वे दैट द सबस्ट्रेट देन फिट इनटू द एंजाइम। तो फिट होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर उससे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये आज हमने पढ़ना था बेटे। तो ये दो इसमें मॉडल दिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, इनको बनाएं, प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।